مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. خادم رضوی صاحب جو ہے جو تحریک لبیک کے بانی ہے، ان کا جسد خاکی یعنی ان کی لاش کو نکالا جائے گا ان کی قبر سے اور لاہور سے باہر کہیں منتقل کیا جائے گا. یہ بڑی خوفناک بات ہے. حکومت پنجاب کو ویسے پتہ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ منتقل کیا جائے گا اور اٹک میں یا راجن پور میں یا کہیں دور دراز علاقے میں منتقل کریں گے تاکہ لاہور میں ٹریفک کے مسائل پیدا نہ ہو. وجہ یہ بنائی جائے گی. تو اس طرح تو جو باقی مزار لاہور میں وہ بھی ساری خالی کر کے آپ کسی کھلے علاقے میں بھجوا دیں، چولستان میں، جنہوں نے جانا ہے عرس کرنے کے لیے ادھر چلے جایا کریں گے. لیکن یہ خادم رضوی صاحب کے حوالے سے خبر ہے، اور یہ اب یہ خبر کا کیا امپیکٹ آتا ہے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ کو پتا چل جائے گا. اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی. اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ قبر شریف سے باہر آ گئے. شیخ کبیر احمد رفاعی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست انور شریف کا بوسہ دیا. حضور کے ہاتھ کو چومنے والے صرف اور صرف ایک ذات شیخ کبیر احمد رفاعی. 179 پہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا تو نے آسمان کیسے دکھایا، مجھے دکھا. اللہ غوث پاک کو آسمان پر لے گیا، پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے دیکھا، کہا بہت اچھا آسمان ہے. دوسرا دیکھا، کہا یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا دیکھا یہ بھی ٹھیک ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے. چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا. اللہ کا چھٹے آسمان سے پیر پھسلا، اللہ چھٹے آسمان سے گرا، گرتے گرتے پانچواں اور چوتھے آسمان تک آیا. تو غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا دیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا. آج پنڈی دی مسجد دے اندر نہ سویرے فجر دی اذان ہون دتی، نہ جمعے دی اذان ہون دتی، بلکہ جڑے نمازی جمعہ پڑھن آئے سارے نو جیلے لے گئے. تے ہن دسو میرا غوث فرماتا ہے وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، ان کے وہ جو آزمائش کا دور تھا وہ ختم بھی میری دعا سے ہوا. پھر آگے فرماتے سنیے گا، انا کنت مع عیسیٰ فی المہد، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام چولہے میں بولے تھے نا، میں ان کا ساتھ ہوں. اور فرماتے اوتی تو داؤد حلاوت نغمتی، کہ وہ جو داؤد علیہ السلام کے نغمے میں شرینی تھی میری تھی. غوث الاعظم فرماتے میں نے عطا کی تھی وہ. بس کر سونیا بس کر. گرامی اس کے بعد فرماتے ہیں انا کنت مع ابراہیم، میں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا. ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کب ملقم بنا رہی، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہاں تھا میں. وما فرشتیاں نے لمیاں پا کے ڈسکاں پھیرنیاں نے. لوگوں وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی نا، میری دعا سے ہوئی تھی. وہ چھاڑ علی پاک نو، چھوڑ علی کو، چھوڑ حسن و حسین کو. جس کا ذہنی توازن برقرار ہو وہ اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا. دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی ہوئی. سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کو داخل ہوئے 1000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. ایک شاہ ولی اللہ نے کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے. پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے سے قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگ گئے. اسی لیے محلہ بزرگوں نے رسک نہیں لیا ترجمہ کرنے کا. بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا، ایک بندے نے کیا بخاری مسلم کا ترجمہ، علامہ وحید الزمان جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ترجمہ کرتے ہی اہل حدیث ہو گئے 1920 میں. تو ویسے سیانے تھے جن لوگوں نے ترجمے نہیں ہونے دیے. جب علماء ترجمے کر کے گمراہ ہو جائیں تو عوام تو ویسے ہی پڑھ کے ہوگی، یعنی انورٹڈ کاموں میں گمراہ. سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے. یا اللہ کیوں سجدہ کر رہا ہوں، بابا تشائی کوئی نہیں. شیطان تو بعد دوسرے نمبر پہ جن نے کیا کون ہے، جیل بھی. وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. یعنی فرعون،
नमरूद, अबू जहल, सारे इनके हैं ना, जाहिर है, क्योंकि इसने कहा कि पहला वो था, दूसरा इंजीनियर है। विच वाले सारे इन्होंने अपने बुजुर्ग छाड़ देते, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला बाबा। हाँ, किताबां बदल गया ना, छाड़ दे, किताबां बदल गया ने। बाबा जी वो नीचे कोई बाबा निकलना न समझ लो, मैं नीचे छड़ना कोई बाबा। बाबा तैयार हो जाओ, आप बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। तहरीक लब्बैक की कम बख्ती और पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल, सच की तलाश और मौलवियों की मन घड़त कहानियाँ, ये हमारे प्रोग्राम का मौजू है। आपने शुरू में मौलवियों की मन घड़त कहानियाँ तो सुन ली, अब हम अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं कि वो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जी ज़रूर। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मजहबी सियासत और इंतहा पसंदी ने माशरती अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP का किरदार खसूसन इस हवाले से ज़ेरे बहस है कि इस जमात ने मजहब को एक सियासी और माशी तिजारत में बदल डाला। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नारे लगाए गए, जज्बाती तकारीर की गईं और अवाम को फ़िरका वारियत और शिद्दत पसंदी की राह पर डाला गया। TLP की हरकत ने न सिर्फ मुल्क में इंतशार को जन्म दिया, बल्कि मजहबी बर्दाश्त और भाईचारे को भी मजरूह किया। चंदों और अतियात के नाम पर अवाम से पैसा बटोरा गया, पीर फकीर और मौलवी कल्चर को मजबूत किया गया और नौजवान नस्ल को गुमराह करके सड़कों पर लाया गया। जब कोई तंजीम मजहब के नाम पर लोगों के ईमान से खेलने लगे तो अंजाम हमेशा रुसवाई ही होता है। जुल्म करने वालों का अंजाम। तारीख गवाह है कि जो कौमें जुल्म और नफरत का बीज बोती हैं, वो बिल आखिर उसी का फल काटती है। TLP ने जो जबान और अंदाज इख्तियार किया, वो ना दीन की खिदमत था ना कौम की। आज खुद वही मसाजिद और मराकिज जो दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल होते थे, इंतजामिया के कंट्रोल में आ रहे हैं। जो लोग दूसरों को रास्ते से हटाने की कोशिश करते थे, खुद कटहरे में आ रहे हैं। ये आइन कानून फितरत है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। जमात अहमदिया सब्र और अमन की मिसाल। इस तमाम शोर व गौगा में जमात अहमदिया मुस्लिमा एक ऐसी जमात है जिसने हर जुल्म, इल्ज़ाम और जबर के बावजूद सब्र और अमन का रास्ता नहीं छोड़ा। इन पर झूठे मुकदमे, हमले और समाजी बायकॉट तक किया गया, लेकिन उन्होंने कभी नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया। अगर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मिसाल कहीं मिलती है तो वो ऐसे किरदार में है जो सब्र, दुआ और आला अखलाक का पेकर हो। मजहबी कार्ड का अंजाम। मजहब के नाम पर सियासत, नारे, जज्बाती हुजूम, ये सब वक्ती चीज़ें हैं। अवाम को देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आज पाकिस्तानी कौम समझ रही है कि असल दुश्मन बैरूनी साजिशें नहीं बल्कि अंदरूनी मजहबी ताजिर है, जो ईमान, कलमे और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तिजारत का जरिया बना बैठे हैं। ताज़ा सियासी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात। हालिया महीनों में TLP के मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ सामने आई है। मुरीद के लाहौर और कराची में होने वाले ऑपरेशंस में मुख्तलिफ मकामात से असलहा, चंदा रिकॉर्ड और इश्तियाल अंगेज मवाद बरामद हुआ। हुकूमत ने पहली बार ये तस्लीम किया कि मजहबी नारों के पीछे एक मुनज़्ज़म माली नेटवर्क काम कर रहा था। बाज़ मदारिस और मसाजिद जो TLP के ज़ेरे इस्तेमाल थीं, उन्हें महकमा औकाफ ने वापस अपने कंट्रोल में ले लिया है। जिन्होंने दूसरों की इबादतगाहों को बंद कराया, आज उन्हीं के मराकिज़ सील हो रहे हैं। अवाम के जज्बात को गिरामाने वाले रहनुमा अब अदालतों और तहकीकाती एजेंसियों को जवाब दे रहे हैं। 30 मसाजिद सील कर दी गई, 7 मदरसे बंद जो ये अहमदियों के साथ करते थे। आज खुदा उनके अपने लोगों से ही ये सब कुछ उनके साथ करवा रहा है। बहुत कर लिया TLP ने जुल्म, अब भुगतो। अदालती मुअक्कफ और हुकूमती रद्द अमल। अदालतों ने हालिया समाअतों में वाज़ेह किया है कि मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वाली जमातों को कानून के कटहरे में लाना ज़रूरी है। हुकूमती तर्जुमानों ने भी एतराफ़ किया है कि ऐसे गिरोह जो सड़कों को यरगमाल और अवामी निज़ाम को मफलूज करते हैं, वो मजहबी नहीं बल्कि सियासी मकासद रखते हैं। एक वज़ीर ने कहा, रियासत दीन दुश्मन नहीं, लेकिन रियासत दीन के नाम पर होने वाले इंतशार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जाहिर करता है कि अब मजहबी कार्ड के इस्तेमाल पर पहली बार खुलकर सवाल उठ रहे हैं। अंदरूनी इख्तिलाफात और क़यादत की कमज़ोरी। TLP के अंदरूनी हलकों में क़यादत पर सवालात उठने लगे हैं। कुछ गिरोह मौरूसी सरबराही के खिलाफ है,
जबकि दीगर मालियाती शफाफियत का मुतालबा कर रहे हैं। जलसों की कम होती हाजिरी और नौजवानों का बदलता रवैया इस बात का सबूत है कि शिद्दत पसंदी के नारों की कशिश मध्यम हो रही है। अवाम अब पूछते हैं कि नारे तो बहुत लगा दिए, हल क्या दिया? अवामी रुझानात में तब्दीली। पाकिस्तानी अवाम में शऊर बेदार हो रहा है। लोग अब मजहबी नारों से ज्यादा रोजगार, तालीम, सेहत और अमन चाहते हैं। मजहबी तिजारत के खिलाफ खामोश बगावत जन्म ले रही है। अवाम समझ चुके हैं कि असल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार से साबित होता है, सड़कें ब्लॉक करने या जज्बात भड़काने से नहीं। अदालतों ने भी हालिया समातों में वाज़ेह किया है कि मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वाली जमातों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। एक जज ने रिमार्क्स दिए कि रियासत माँ होती है, माँ अपने बच्चों को डंडे से नहीं मोहब्बत से संभालती है, लेकिन जो बच्चे आग से खेलेंगे उन्हें बाज रखना ज़रूरी है। ये बयान इस हकीकत की अक्कासी करता है कि अब रियासत जज्बाती नारों के बजाय आइन और कानून की हुक्मरानी चाहती है। अदालतों ने चंदा महामात, सड़कों की बंदिश और इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी खताबात के रिकॉर्ड तलब किए हैं ताकि ये साबित हो सके कि मजहबी लिबास में पोशीदा सियासी अज़ाइम को बेनकाब किया जाए। ये अमल बताता है कि अब वो दौर बदल रहा है जब मजहबी पेशवायत एहतसाब से बालातर समझी जाती थी। कौमों की तकदीर नारे नहीं बदलते, किरदार बदलता है। टीएलपी का जवाल एक सबक है कि मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। पाकिस्तान को अब जरूरत है ऐसी क़यादत की जो इत्तेहाद, बर्दाश्त और अदल पर यकीन रखती हो, ना कि फ़िरक़ावारियत और जज्बाती नारों पर। ए अल्लाह, इस वतन को इन फितनों से महफूज फरमा जो दीन के नाम पर दिलों में नफरत और घरों में तकसीम पैदा करते हैं। हमें सब्र, अक्ल, इंसाफ और हकीकत को पहचानने की तौफीक दे। आमीन। ये वीडियो इस उम्मीद के साथ बनाई गई है कि पाकिस्तान के अवाम सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना सीखें और मुस्तकबिल का रास्ता अमन, इल्म और इंसाफ से मुंतखब करें। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बात का जिक्र करते चले, सच की तलाश और मौलवियों की मनगढ़ंत कहानियाँ। पाकिस्तान में कई दहाइयों से अवाम को मजहब के नाम पर झूठी और मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर गुमराह किया जा रहा है। मौलवी तबके ने दीन को सच्चाई के बजाय जज्बाती किस्सों का मजमुआ बना दिया है। ऐसे में मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक ऐसा नाम है जिसने कम अज़ कम ये जुर्रत की कि उन झूठी रवायात और मुल्लाज़म के पर्दे चाक किए। अगरचे वो अहमदियों के बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल करता रहा, मगर बाज़ मौक़े पर उसने हक़ के करीब बातें भी कीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसके दिल में सच्चाई की रोशनी डाले और उसे सही इस्लाम यानी जमात अहमदिया मुस्लिमा की पहचान नसीब फरमाए, क्योंकि जो हक़ की तलाश में मुखलिस हो, खुदा खुद उसके लिए रास्ते खोल देता है। आपने ऐलान फरमाया कि तुम मुझे झूठा और दुकानदारी चमकाने वाला कहते हो। बताओ, क्या मुसलमानों की हालत ये नहीं कि हर तरफ से इनमें बिगाड़ पैदा हो चुका है? मुसलमानों की अमली हालत कमज़ोर हो चुकी है। मुखालिफ हर तरफ से इस्लाम पर हमले कर रहा है। इस ज़माने के हालात के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम ने जो निशानियाँ बताई थीं वो पूरी हो रही हैं। अमूमी तौर पर दुनिया खुदा ताला से दूर होती चली जा रही है। अब भी अगर किसी ऐसे मसले की ज़रूरत नहीं जो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत पाकर इस्लाम की खूबसूरत तालीम को फैलाने आया हो, जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आपकी खूबसूरत तालीम को दुनिया में फैलाना है, तो फिर वो शख्स कब आएगा? आपने खुलकर ज़माने के हालात की वजाहत फरमाई कि ये वही ज़माना है जिसमें ये हालात ज़ाहिर हो रहे हैं, और इस ज़माने की ज़रूरत एक मसले को पुकार पुकार कर बुला रही है। कुरान करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ ज़माने की हालत का नक्शा खींच रही हैं। मसीह मौत के दावे के साथ खुदा ताला की ताईदात और नुसरत का नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद तुम समझना नहीं चाहते। मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में
خاتم المرسلین